हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। अभी तक हमने मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लाइक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, फंक्शंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो अभी तक जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको पहले जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, है ना। टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। ओके, इसमें हम मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? कल हमने 5 फंक्शंस किए थे ना मैनेजमेंट के। क्या थे वो 5 फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शन हमने किए थे ना कल। कोऑर्डिनेशन भी एक वन ऑफ द फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। हम सिर्फ इसको फंक्शन नहीं कह सकते, बल्कि ये एक एसेंस है मैनेजमेंट का। क्या है? इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। Coordination refers to the task of integrating the activity of separate units of an organization to accomplish the goals efficiently. Coordination क्या है? Coordination is the task of integrating. एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, सेपरेट एक्टिविटीज होती हैं, उनको इंटीग्रेट करने का काम, साथ में लाने का काम किसका है? कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है। Coordination is the force that binds all the other function of management, hence it is regarded as essence of management. All right, coordination एक force है जो कि bind करके रखती है all the function of management, इसीलिए हम इसको essence of management कहते हैं। ये जो हमारे सारे फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इन सबको एक साथ बाइंड करके करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ऑलराइट, आई होप कोऑर्डिनेशन का मीनिंग आप सबको क्लियर हो चुका होगा। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू परफॉर्म इट। नाउ वी विल सी द डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन which are given by some experts. According to Henry Fayol, to coordinate is to harmonize all the activities of a concern so as to facilitate its working and its success. According to EFL Breach, coordination is the balancing and keeping together the team by ensuring a task to members and seeing that task performed with harmony among members themselves. The meaning and definition of coordination, I hope this is clear to you all. Now we will further proceed to features of coordination. The features of coordination, or we can say characteristics of coordination. First feature क्या है? फंक्शन। मैंने अभी डिस्कस किया ना कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि इट इज मच मोर देन अ फंक्शन। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑलराइट, coordination is not a separate function of management, it is a part and essence of management. Alright, next is responsibility. Coordination is the basic responsibility of all managers and it can be only achieved through managerial function. ठीक है। The next one is unity. The main aspect of coordination is the unity of efforts and action, which includes the predetermining timings and methods of performance of the various activities so that efforts of individuals are blended into group efforts. ठीक है। Next one is requirement. Coordination is required in the group efforts and not in the individual efforts. It is not required when an individual works alone, but when the group is working for the common objective, then their efforts needs to be coordinated. Okay. Next is integration. Higher the degree of integration, higher the coordination is required. Further, lower the degree of integration, lower the coordination is required. Alright. Next is continuous and dynamic. Coordination is a continuous and dynamic process. It is continuous as it is achieved through the performance of functions. It is dynamic as it changes within the change in the function. ठीक है, continuous activity है coordination, ठीक है। And dynamic here means change, ठीक है। Dynamic here means change. Next one is purpose.
कोऑर्डिनेशन हैज़ द पर्पस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन का यही पर्पस है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही इज द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स. Balancing, timing and integration are the three main elements of coordination. Balancing, timing and integration. All right. So these are the three elements of coordination. What are the features of coordination? I hope this is clear to you all. So moving further to our next topic, that is importance of coordination. Importance of coordination, or we can say it as essence of management. हम लोग इतनी देर से बोल तो रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बट एसेंस का मीनिंग होता क्या है ना? तो एसेंस का मीनिंग होता है, मैं आपको बताती हूँ. एसेंस मीन्स बेसिक और most important quality of something. ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लो फटाफट ताकि आपको याद रहे. सो एसेंस का मतलब होता है बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है मैनेजमेंट की. ठीक है, इसके बिना कोई भी अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेशन की जो इम्पोर्टेंस या एसेंस प्रूव करते हैं, तो इनको समझ लेते हैं. फर्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन. ये एक बेस प्रोवाइड करवाता है मैनेजरियल फंक्शंस को. कैसे? क्योंकि कोऑर्डिनेशन पहले ही स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, लाइक प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड गोज सिस्टमैटिकली विद ऑल द फंक्शंस, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना. इन सभी फंक्शंस के हम ऑब्जेक्टिव जो है तभी अचीव कर पाएंगे जब इन पांचों फंक्शंस के बीच में जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तो ही हम अपने जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. सो फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देयर शुड बी एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ही हम जो है अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है यूटिलाइज कर पाएंगे. सो नेक्स्ट इज स्टैब्लिशेस ह्यूमन रिलेशन. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो है गुड ह्यूमन रिलेशन, आपस में अच्छे रिलेशन होने चाहिए वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में, है ना. तभी तो हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे. तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है इन मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद एम्प्लॉयज विच हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज. नेक्स्ट इज एम्फोसिस टू यूनिटी. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एम्प्लॉयज में यूनिटी होगी तो ही ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा. लास्ट वन इज एनकरेज टू डेवलपमेंट. सो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और पीपल और इट्स वर्कर्स. ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू एनकरेज द डेवलपमेंट. Okay, so we had completed topics of the day: coordination, its meaning, definition, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस. हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. आई होप सबको क्लियर हो चुके होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही लेना. ओके, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक्स. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.